friends, welcome to your channel Maths Mania. Now in this video we will cover introduction to polynomial. तो हम इस वीडियो में सीखेंगे कि पोलिनोमियल एक्चुअली है क्या, पोलिनोमियल्स के टाइप कितने हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू पोलिनोमियल. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी बिगिन विद मोनोमियल. Monomial means there is only one term. For example, 2x, 7y, 3y, 2x square, all these are monomials. Now second one is binomial. In the binomial there are two terms like 7x plus 3, two terms. For example, 7x plus 3, 3x plus 2, 2x plus 7y, all these are binomials because there are two terms, first and second, 2x plus 7y, first and second. Now trinomial. In the trinomial there are three terms. For example, 2x square plus 3x plus 1, like 3y square plus 7y minus 2, all these are trinomials because there are 1, 2 and 3 terms, first, second and third term. So this is the trinomial. And the next one is polynomial. So in the polynomial there are more than 3 terms. For example, x cube plus 3x square minus 7x plus 2. Another example is x raised to 5 plus x raised to 4 plus x raised to 3 plus 3x square plus 7x plus 1. All these are polynomials because there are more than 3 terms. So quickly, monomial there is one term, binomial there is two terms, trinomial there is 3 terms, and the polynomial having more than 3 terms. Now we will continue with the next concept, the degree. What is the degree? Now in the degree, how we can find out the degree of the given polynomial? So simply we have to focus on the exponent of the polynomial. The highest exponent, the highest power is called the degree of the given polynomial. Degree means highest power of p of x or whatever is the p of y, p of z, with p of x means a polynomial. So highest power of polynomial is known its degree. Now example, 2x square plus 3x plus 1. Now the highest power of this polynomial is 2. So degree is 2. Another example, x raised to 5 plus x raised to 4 plus x raised to 3 plus 7x square plus 3x plus 1. Now in this polynomial the highest power of the polynomial is 5. So the degree is equals to 5. So इस polynomial की degree क्या हो जाएगी? 5. Now again one more concept is constant. What is the constant? Constant क्या है? तो सपोज कि कोई एक पॉलिनोमियल है 3x plus 7. Okay, it is a binomial. There are two terms. Now x is the variable, 3 is the coefficient किसका? तो x का, and this 7 it is the term which is the constant term. constant term के पास कोई वेरिएबल नहीं होता. constant term की डिग्री क्या होती है? 0 because there is no any variable. अगर कोई वेरिएबल होगा तो भी हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं x raised to 0. x raised to 0 means 1, तो 7 into 1 is 7. So constant term के पास कोई वेरिएबल नहीं होता और उसकी डिग्री हमेशा क्या होती है? 0. So we can say that the degree of the constant term is always 0. constant term की डिग्री हमेशा 0 रहेगी. तो कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि what is the degree of the zero polynomial? तो zero polynomial means there is only constant term are there.
उसके वहां पे सिर्फ कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म की डिग्री क्या होती है 0। तो कभी कभार एग्जाम में ऐसा पूछते हैं कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ द जीरो पोलिनोमियल। तो जीरो पोलिनोमियल मतलब वहां पे सिर्फ क्या होगा, एक कांस्टेंट टर्म ही होगा और कांस्टेंट टर्म की डिग्री क्या होगी 0। तो आंसर क्या आएगा, डिग्री इज 0। सो नाउ we will continue with the types of polynomials. So as per the degree, there are 3 types of polynomials are there. First one is the linear, second one is the quadratic, and the third one is the cubic. Let's see. Now in the linear polynomial, linear polynomial हम कब बोल सकते हैं कि जब किसी कोई polynomial की डिग्री 1 हो। अगर polynomial के पास 1 डिग्री है तो उसको बोला जाता है linear polynomial. So we can say that when the polynomial having degree as 1, so it is a linear polynomial. For example 3x, तो 3x, अब देखो इस polynomial की डिग्री क्या है, यहाँ पे क्या होगा 1, so it is a linear polynomial. Again one more example 7x plus 2, यहाँ पर भी देखो इस polynomial की highest exponent है 1, so its degree is 1, it is also a linear polynomial. Now the second one is quadratic. तो जब भी अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री 2 हो तो उस पोलिनोमियल को बोला जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. सो डिग्री इज 2. When the polynomial having degree as 2, so it is called a quadratic polynomial. For example 7x square plus 3x plus 1. So the highest degree of this polynomial is 2. So it is known as the quadratic polynomial. Again one more example 3x square plus 7y. Again यहाँ पे x कर देते हैं 3x square plus 7x. Again इस polynomial की highest exponent होगी 2. So degree of this polynomial is 2. So it is also called a quadratic polynomial. Now the third one is cubic. Simple. When the polynomial having the degree as 3, then it is called क्यूबिक पोलिनोमियल. सो डिग्री क्या होनी चाहिए इसकी 3. डिग्री इज 3. फॉर एग्जाम्पल 7x क्यूब प्लस 4x प्लस 5. अब इस पोलिनोमियल की हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है 3. दैट मीन्स द डिग्री ऑफ द गिवन पोलिनोमियल इज 3. सो वी कैन से दैट इट इज अ क्यूबिक पोलिनोमियल. वन मोर एग्जाम्पल 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7. अगेन check the highest power. Highest power is 3. That means the degree of the given polynomial is 3. So it is a cubic polynomial. अब linear polynomial, quadratic polynomial और cubic polynomial में हमें terms में focus नहीं करना है कि कितने terms है, it's a monomial है कि binomial है कि trinomial है. We have to simply check the highest exponent. उसी के हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन होगा linear polynomial में, quadratic polynomial में और cubic polynomial में. Simply we have to focus on the degree of the given polynomial. So now we will continue with the next concept. अब हम कब बोल सकते हैं कि given polynomial जो है वो actually polynomial है या नहीं, तो उसकी कुछ conditions हैं. आइए उसको quickly देख लेते हैं कि suppose कभी कुछ ऐसा दिया है कि 3x raised to 1/2 plus 7. तो हमें ये चेक करना है कि एक पोलिनोमियल है या नहीं. तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे फोकस करना है उसके एक्सपोनेंट पे. उसका एक्सपोनेंट देखो फ्रैक्शन में. तो पोलिनोमियल का एक्सपोनेंट ऑलवेज होल नंबर में होना चाहिए, ना तो वो नेगेटिव होना चाहिए ना ही वो फ्रैक्शन में होना चाहिए. तो इट इज नॉट अ पोलिनोमियल बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ द गिवन पोलिनोमियल या गिवन इक्वेशन इज 1/2. अब देखो यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है 1/2. सो ये पोलिनोमियल ही नहीं है. एक और एग्जांपल दिखाता हूँ y रेस्ट टू 1/1 प्लस 2. अब देखो यहाँ पे इस इक्वेशन का एक्सपोनेंट देखो -1 है. तो अभी हमने बताया कि कभी भी डिग्री या तो एक्सपोनेंट माइनस में नहीं होना चाहिए. अगर वो माइनस में हुआ तो हम बोल सकते हैं कि इट इज नॉट अ पोलिनोमियल. वन मोर एग्जांपल 2/y प्लस 1. तो 2/y मीन्स 2y रेस्ट टू -1 प्लस 1. ये दोनों इक्वल ही है, ये दोनों चीज सेम है. तो अगेन देखो यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या हो गया माइनस. सो अगेन वी कैन से दैट इट इज नॉट अ पोलिनोमियल. सो नाउ वी विल कंटिन्यू विथ एक्सरसाइज 2.1. Exercise 2.1 question number 1. So in the question number 1 we have to check
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल और नॉट। तो हमें चेक करना है कि ये जो गिवन एक्सप्रेशंस जो है वो पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल है या नहीं। तो वन वेरिएबल मीन्स अगर सपोज किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल x है तो फिर पूरे एक्सप्रेशन में वो x ही होना चाहिए, x और y और z दो वेरिएबल्स आने नहीं चाहिए। तो हम चेक करते हैं। फर्स्ट वन इज 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल एक ही है तो ये तो वन वेरिएबल तो हो गया। अब चेक करते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तब उसकी डिग्री भी देखो 2 है, तब डिग्री भी पॉजिटिव में है यानी कि होल नंबर में है और वेरिएबल भी एक ही है। सो वी कैन से दैट यस इट इज पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, y² प्लस √2। अगेन इसमें देखो वेरिएबल एक ही है y, उसकी डिग्री देखो क्या है 2, पॉजिटिव 2, दैट मीन्स होल नंबर। सो वी कैन से दैट यस it is a polynomial with one variable. Now in the question number 3, 3√t plus t√2। तो अब देखो यहाँ पे तो एक टर्म इस तरीके से 3t⁻² प्लस t√2। रूट मीन्स उसका एक्सपोनेंट क्या हो जाता है 1/2। तो अब देखो यहाँ पे वेरिएबल तो एक ही है t, पूरे एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल है t, बट द डिग्री देखो, डिग्री किस में है, फ्रैक्शन में है। सो इट इज नॉट अ होल नंबर, उसकी डिग्री जो है वो होल नंबर में नहीं है। सो वी कैन से दैट नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 4, y प्लस 2/y। तो एक्चुअली ये एक्सप्रेशन इस तरीके से है y प्लस 2y⁻⁻1। तब देखो वेरिएबल तो एक ही है y, बट डिग्री देखो, डिग्री किस में है, नेगेटिव में, तो वो नहीं होनी चाहिए। सो अगेन नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो फिर वन वेरिएबल है या टू वेरिएबल है वो बोलने का मतलब ही नहीं होता। नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 5, x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻15। अब सिंपली यू कैन सी दैट देयर आर 3 डिफरेंट वेरिएबल्स। ये पॉलिनोमियल तो है बट वो वन वेरिएबल नहीं है। सो सिंपली आंसर इज नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल विथ one variable. So now we will continue with the question number 2. In the question number 2 we have to write coefficient of x²। तो हमें पॉलिनोमियल जो दिया होगा उसमें हमें x² वाले टर्म पे फोकस करना है कि भाई उसका कोएफिशिएंट क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में 2 प्लस x² प्लस x, अब उसमें x² वाला टर्म कहाँ पे, ये रहा। अब उसका कोएफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पर तो कोई डिजिट नहीं है, दैट मीन्स देयर इज 1। सो the coefficient of x² in the first question is 1. In the second question 2 minus x² plus x³। तो इसमें हम देखते हैं कि x² वाला टर्म कहाँ है, तो ये रहा। तो अब देखो यहाँ पर भी कोई डिजिट नहीं है, दैट मीन्स देयर इज 1। सो हम बोल सकते हैं कि इन दिस पॉलिनोमियल द कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म x² इज -1। देखो यहाँ पे हमने प्लस लिया है क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, दैट मीन्स पॉजिटिव 1। यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस, इसलिए हमने क्या लिया, -1। नाउ इन द थर्ड क्वेश्चन π/2 x² प्लस 1। तो x² वाला टर्म कहाँ पे, ये रहा, तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, π/2। नाउ इन द फोर्थ क्वेश्चन √2x - 1। अब इसमें तो भाई x² वाला टर्म ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, अगर x² वाला टर्म है ही नहीं तो उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, सिंपली 0, या तो आप ऐड भी कर सकते हो उसको, √2x 0x² प्लस √2x - 1। तो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, हमने सिर्फ क्या कर दिया, यहाँ पे 0x² ऐड कर दिया, क्योंकि अगर हम कंफ्यूज हो गए कि x² वाला टर्म है ही नहीं तो उसका कोएफिशिएंट कैसे बताएं, तो उसको 0x² करके गिवन पॉलिनोमियल में ऐड कर दो। अब देखो यहाँ पे x² वाला टर्म यहाँ पे, उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। तो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर कोई भी टर्म का कोएफिशिएंट आपको पूछा, किसी भी टर्म का कोएफिशिएंट आपको पूछा है और वो टर्म पॉलिनोमियल में है ही नहीं, तो उसका कोएफिशिएंट ऑलवेज क्या होगा, 0। अगर समझो कि यहाँ पर आपको ऐसा पूछते हैं कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x³, तो अब यहाँ पे x³ वाला टर्म है ही नहीं, तो उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाता, 0। नाउ
इन द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दो क्वेश्चन सिंपली पूछा गया है कि एक बाइनोमियल का एग्जाम्पल दीजिए जिसकी डिग्री 35 होनी चाहिए। तो बाइनोमियल मीन्स टू टर्म्स और डिग्री मीन्स द हाईएस्ट एक्सपोनेंट, तो मतलब दो टर्म होने चाहिए और हाईएस्ट एक्सपोनेंट होना चाहिए 35। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 3x रेज़ टू 35 प्लस 8। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, दूसरा वाला टर्म भी कोई भी ले सकते हो। मैंने कांस्टेंट लिया है तो ये मतलब नहीं है कि आपको भी कांस्टेंट लेना है। आप यहाँ पे 8x भी लिख सकते हो। मेन पॉइंट क्या होना चाहिए कि हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए 35 और दो टर्म होने चाहिए। अगर यहाँ पे एक और टर्म ऐड कर दिया तो वो ट्राइनोमियल बन जाएगा, वो बाइनोमियल नहीं रहेगा। सो बाइनोमियल यानी कि टू टर्म और डिग्री 35 होनी चाहिए। दैट मीन्स के हाईएस्ट एक्सपोनेंट इज 35। तो ये आ गया हमारा आंसर। इन द नेक्स्ट वन, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। सो मोनोमियल मीन्स ओनली वन टर्म और डिग्री 100 मीन्स हाईएस्ट एक्सपोनेंट इज 100। सो यू कैन सिंपली राइट लाइक दैट x रेज़ टू 100। ये हो गया हमारा मोनोमियल। वन टर्म है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट दे दी हमने 100, तो डिग्री हो गई इसकी 100। सो बोथ दिस आर आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी विल कंटिन्यू विद द क्वेश्चन नंबर 4। Now in the question number 4 we have to write the degree of the given polynomial. So in the first question 5x cube plus 4x square plus 7x, तब उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट देखो, हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है 3, दैट मीन्स डिग्री इज 3। यहाँ पे 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो अब यहाँ पे हाईएस्ट एक्सपोनेंट देखो क्या है 2, दैट मीन्स डिग्री इज इक्वल्स टू 2। नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 3 5t माइनस रूट 7, अब इसका एक्सपोनेंट हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या होगा 1, बिकॉज यहाँ पे देखो t के पास कोई एक्सपोनेंट ही नहीं था, दैट मीन्स देयर इज अ 1। तो अब हाईएस्ट एक्सपोनेंट 1 है, तो डिग्री क्या हो गई इसकी 1। क्वेश्चन नंबर 4 देयर इज अ 3, ओनली 3, दैट मीन्स इट इज अ कांस्टेंट टर्म। तो मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट टर्म की डिग्री क्या होती है ऑलवेज 0। सो इसकी डिग्री होगी 0। Now in the question number 5 we have to classify the given polynomial in linear, quadratic और cubic। तो देखते हैं, चलो फर्स्ट वन इज x स्क्वायर प्लस x। अब इसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है 2, दैट मीन्स डिग्री क्या होगी इस पोलिनोमियल की 2। तो अगर डिग्री 2 होती है तो वो पोलिनोमियल होता है क्वाड्रेटिक। इन द क्वेश्चन नंबर 2 x माइनस एक्स क्यूब, तो अब इसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है 3, तो इस पोलिनोमियल की डिग्री होगी 3। तो जब भी किसी पोलिनोमियल के पास डिग्री 3 हो तो वो होता है क्यूबिक। इन द क्वेश्चन नंबर 3 y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, अब हाईएस्ट एक्सपोनेंट देखो क्या है 2, दैट मीन्स डिग्री ऑफ द गिवन पोलिनोमियल इज 2। तो अगर डिग्री 2 होगी तो वो बन जाएगा क्वाड्रेटिक। फोर्थ वन 1 प्लस x, अब यहाँ पे देखो हाईएस्ट डिग्री होगी 1, सो इट इज अ लीनियर, क्योंकि अगर जब भी कोई पोलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो वो बन जाता है लीनियर पोलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 5 3t, अगेन यहाँ पे कोई एक्सपोनेंट ही नहीं है, दैट मीन्स देयर इज अ 1। तो यहाँ पे देखो डिग्री क्या होगी इस पोलिनोमियल की 1, तो अगेन इट इज अ लीनियर। क्वेश्चन नंबर 6 r स्क्वायर, अब यहाँ पे डिग्री क्या होगी 2, बिकॉज हाईएस्ट एक्सपोनेंट इज 2। तो अगर डिग्री 2 है सो इट इज अ क्वाड्रेटिक। क्वेश्चन नंबर 7 7x क्यूब, तो अब देखो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री है 3, हाईएस्ट एक्सपोनेंट इज 3, सो द डिग्री इज 3। तो अगर वो डिग्री 3 है दैट मीन्स इट इज अ क्यूबिक। सो नाउ in the next video we will continue with the next exercise.